वेलकम इन दिस न्यू ईयर 2022। आप सबका स्वागत है कि हम ईयर 2022 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको ये नया साल दिखाया है और गुज़रे साल उसने हम सबको संभाल कर रखा है। आज जब हम अपनी आराधना ऑनलाइन करते हैं तो हमारा जो थीम हमको दिया गया है, द नेम ऑफ जीसस। वी ऑल्सो रिमेंबर द रिन्यूअल ऑफ द कवनेंट। वो वाचा जो हमारे साथ परमेश्वर ने बांधी थी उसको हम फिर से याद करें। द एंजल सेड, यू शैल कॉल हिज नेम जीसस, for he will save his people from their sins. Let us praise his holy name. Let us sing now hymn, O God, our help in ages past. Shall we all read section 3, 4 and 5? The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with you. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thought of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One,
You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God and Father. Amen. Shall we pray? Eternal Lord God, by whose mercy we have come to the beginning of a new year, deliver us, your servants, from our former sins, and guide our steps all the days of our life. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. Now we'll read the scripture from the Old Testament. पुराने नियम में से इस समय पढ़ा जाएगा. Old Testament reading is taken from the book of Joel, chapter 2, verses 28 to 32. पुराने नियम का पाठ लिया गया है योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 28वें पद से लेकर 32वें पद तक. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा. मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग तथा धुएं के खंभे दिखाऊंगा. यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा. उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा. और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएंगे. यह परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आइए इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे और लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे. गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, 2nd chapter, beginning from 15th verse. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they went with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying which had been told to them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary kept all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it has been told them. And at the end of the 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. This is the gospel of Christ. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. नए साल के इस अवसर पर जब हम सब ऑनलाइन अपनी इबादत को कर रहे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. और इस समय रेवरेंड मॉरिसन रोज परमेश्वर का वचन हमारे लिए पेश करेंगे. मेरे मुँह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हों, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान. आमीन. आज 2022 के पहले दिन नए साल में कि मैं आपको रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के बिहाफ पर, रेवरेंड शर्ली लाल के बिहाफ पर नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ. ए ब्लेसड न्यू ईयर टू ऑल. आज हमें जो थीम दिया गया है
वो है द नेम ऑफ जीसस एंड रिन्यूअल ऑफ द कवेनेंट। प्रभु यीशु का नामकरण व वाचा का नवीनीकरण। आज हमने अपनी जिंदगी और विश्व इतिहास के नव वर्ष में कदम रखा है और यह एक ऐतिहासिक बात है क्योंकि 2021 में कोरोना की सेकंड वेव में हमने अपने बहुत से रिलेटिव्स, वेल विशर्स, फ्रेंड्स और कलीसिया के सदस्यों को खोया है। 2020 और 2021 का जो साल था हमारे लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैलेंजिंग वर्ष था। प्रभु ने हमें संभाला और आज हम सबको 2022 में एंटर होने का मौका दिया है। लगभग 2-3 साल पहले 31 की नाइट को एक टीवी कवरेज में मैंने देखा कि जो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में की गई थी कि वहाँ पर हज़ारों लोग की भीड़ जो है सर्दी की कड़क ठंड में उसका साहसपूर्वक सामना करते हुए नए साल के लिए वो एकत्रित हुए थे। ठंड का भी सामना कर रहे थे लेकिन उनके अंदर जोश था नए साल के स्वागत करने का। और जैसे ही आधी रात को 12 बजे घंटे की आवाज़ सुनाई दी, भीड़ से गाने की आवाज़ें फूटी, लोगों ने अपने सर से टोपियां उछाल कर नए साल का स्वागत किया और एक दूसरे को बधाई दी। और ये सच है कि हम नए साल के आगमन की खुशियां मनाते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते हुए साल की आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमें और हमारे परिवार वालों को दी हैं। आज नए साल के दिन को हम क्रिसमस से गिने तो ये 8वां दिन है और आज के दिन यीशु का नामकरण होने के दिन के साथ हम नए साल का भी स्वागत करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 21वें पद में हम पाते हैं कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो यीशु मसीह का जो खतना था वो भी 8वें दिन अर्थात आज ही के दिन पूरा हुआ। खतना जो है वो मूसा की व्यवस्था अर्थात लॉ ऑफ मोसेस था जिसका कि यीशु के माता पिता जोसेफ एंड मैरी ने उसका पालन किया। Thus, Jesus Christ became a participant in the covenant, a son of Israel. यीशु के पैदा होने से परमेश्वर की वाचा का नवीनीकरण हुआ जिसको हम पाते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय 31 से 34वें पद तक और जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 31वें पद में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खतना होने के साथ ही लहू या खून बहने की प्रक्रिया भी क्या है शुरू हो गई थी। संसार के छुटकारे के लिए यीशु का लहू बहना जो था यह उनकी ज़िंदगी का पहला कदम था। लहू बहने की प्रक्रिया और अधिक हो गई जैसे जैसे यीशु मसीह का जीवन जो है उसकी समाप्ति की ओर होगा। तो इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ बाइबल में हम पहले से ही पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने 3 प्राचीन विधियों का पालन करते हैं और उस समय यहूदी लोग जो थे हर यहूदी बालक को इन 3 विधियों का पालन करना पड़ता था। पहला है खतना, दूसरा है पहलौठे का छुड़ाया जाना और तीसरा है प्रसव के बाद शुद्धिकरण। खतना जो था जन्म के 8वें दिन प्रत्येक यहूदी बालक का किया जाता था। यह अनुष्ठान इतना पावन माना जाता था कि सबत के दिन भी इसे किया जाता था और उसी दिन वहाँ की प्रथा के अनुसार बालक का नामकरण भी होता था। और जो दूसरी विधि है पहलौठे का छुड़ाया जाना, उस समय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक पहलौठा चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का परमेश्वर को उसको अर्पित किया जाता था। गिनती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 15 और 16वें पद में यह विधान था। और तीसरा है प्रसव के बाद शुद्धिकरण।
बच्चा पैदा होने के बाद यदि लड़का है तो माता 40 दिन तक अशुद्ध मानी जाती थी, और यदि लड़की है तो 80 दिन तक अशुद्ध मानी जाती थी। तो मदर जो है वो घर के रेगुलर वर्क तो करती थी, परंतु वो मंदिर नहीं जा सकती थी और ना ही वो किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो ये अनुष्ठान पुराने विचित्र अनुष्ठान थे, परंतु तीनों के पीछे यह निश्चित था कि बच्चा जो है वो परमेश्वर की ओर से वरदान है। एक स्तोइकी दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो माता पिता को दिया नहीं जाता, परंतु परमेश्वर के द्वारा उधार दिया जाता है। परमेश्वर के सब वरदानों में ऐसा कोई वरदान नहीं है जिसके लिए हमें इतना दायित्वपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है जितना बच्चे के वरदान के लिए। आज हम यीशु के नामकरण के दिन को मनाते हैं। यह दिन हर एक के जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नामकरण के दिन जो बच्चे को नाम दिया जाएगा और जब तक वो इस ज़मीन पर जीवित रहेगा उसको उसी नाम से एड्रेस किया जाएगा, उसे उसी नाम से पुकारा जाएगा और पहचाना जाएगा। अक्सर बच्चे का नाम जो है उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रखते हैं या नाम सजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, परंतु यीशु के नाम के लिए जैसे कि आज अगर नाम कोई रखना होता है तो कोई गूगल सर्च करता है, कोई नेट पे सर्च करता है या नेम ऑफ बुक को कंसल्ट करते हैं या किसी रिश्तेदार को कंसल्ट करते हैं, परंतु यीशु के केस में इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके जन्म और नाम की जो भविष्यवाणी है वो हम ये यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 14वां पद और लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26वें पद में हम पाते हैं। पुराने नियम में ये भविष्यवाणियाँ कर दी गई थी और प्रभु यीशु मसीह को हम पाते हैं कि बहुत से टाइटल से उनको नवाजा गया, जैसे प्रिंसेस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार या इमानुएल, प्रभु हमारे साथ है, उद्धारकर्ता आदि। तो पहले जो नाम रखे जाते थे उससे मनुष्य के करैक्टर और डेस्टिनी का पता चलता था, जैसे जीसस मीन्स ही सेव्स। आज की जब हम सेकंड रीडिंग को देखते हैं जो कि रोमन से ली गई है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं 11वें पद में कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, और 12वें पद में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। और 13वें पद में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो ये सब बातें जो हम रोमी की पत्री में हमें बताया गया है कि विश्वास करें और लज्जित ना हो, उसका नाम लें और हमें हमारे जीवन में उद्धार मिले। आगे हम अपनी गॉस्पेल रीडिंग में पाते हैं कि यीशु के जन्म का जो है उसका शुभ संदेश की घोषणा उस समय चरवाहों को मिली। चरवाहों को उस समय के रूढ़िवादी लोग जो थे उनको नीचा समझते थे, वह उनसे डिस्टेंस रखते थे। व्यवस्था की विधियों और अनुष्ठानों का पालन करना जो था वो चरवाहों के बस की बात नहीं था। रूढ़िवादी लोग उनको नीची दृष्टि से देखते थे, उनको अज्ञानी और सामान्य लोग मानते थे, परंतु परमेश्वर का संदेश जो है पहले मैदान में उपस्थित चरवाहों जो कि सरल और सीधे लोग थे उन्हीं के पास आया, जिनको भी लोग नीची नज़र से देखते थे। ऐसा लगता है कि वो चरवाहे जिनके पास प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश गया वो शायद उस समय स्पेशल रहे होंगे या विशेष होंगे। तो स्वर्गदूत जब यीशु के जन्म का संदेश चरवाहों को देकर चला गया, तब उन चरवाहों ने या गडरियों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम बैतलहम में जाकर इस बात की पुष्टि करें। हो सकता है कि चरवाहों ने उस समय ऐसा सोचा हो कि राजा का जन्म जो है किसी भव्य महल या बड़े घर में होगा, परंतु जब उन्होंने बालक यीशु को चरनी में देखा तो उन्हें शायद बहुत ही आश्चर्य हुआ होगा। आगे 7वीं वर्ष आयत में हम पढ़ते हैं कि चरवाहों या गडरियों ने स्वर्गदूत से सुनी हुई बातों को मरियम के साथ शेयर किया और सबने इन बातों को सुनकर आश्चर्य किया।
लेकिन मरियम ने चरवाहों द्वारा दी गई बातों को ध्यान से सुना और मन में ही रखा। और चरवाहे जो हैं मरियम से इंटरैक्ट करने के बाद परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए चले गए, ताकि इस खुशी के समाचार को अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि यीशु का नाम जो है हमारे लिए मुक्ति का चिन्ह है, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और हम देखते हैं कि यीशु के नाम में हमें दया दिखती है। जब हम पूरे विश्वास के साथ उसका प्रयोग करते हैं तो वह एक हमारे जीवन में प्रार्थना बन जाती है। प्रभु यीशु के नाम में हमें स्वीटनेस, कंसोलेशन, एनफ करेज, जॉय एंड हैप्पीनेस देखने को मिलती है। प्रेयर और प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है, उसकी एक सच्ची घटना को मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, जिसे कि एक डोमिनिकन राइटर्स जो कि पॉल ओ सलिवन ने अपनी एक किताब में रिकॉर्ड किया। 1432 में लिस्बन एक जगह का नाम है जो कि पुर्तगाल में है, वहाँ पर देश के हर कोने में प्लेग नाम की भयंकर बीमारी है जो है फैल गई। और प्लेग ऐसी बीमारी थी जिससे कि उस समय पूरे के पूरे गांव, चूँकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं थी, उस मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में पूरे के पूरे गांव ख़त्म हो गए। हम अपने देश में भी देखते हैं कि 10-15 साल पहले जब गुजरात के सूरत में प्लेग फैला था, तो उस समय भी एक बड़ी भयावह डरावनी स्थिति बन गई थी कि सूरत से आने जाने वाली जो ट्रेन्स थी वो बिल्कुल खाली थी और कोई भी सूरत की ओर जाना नहीं मांगता था। अगर किसी को ये पता लगे कि किसी के घर में कोई सूरत से आया है तो लोग उससे डिस्टेंस रखते थे। तो लिस्बन में प्लेग के कारण डेड बॉडीज़ जो हैं वो इधर उधर पड़ी हुई थी। कोई अगर उनके कांटेक्ट में आ गया तो प्लेग का शिकार हो जाएगा। तो उस समय बिशप एंड्रूज डायस ने सब जीवित लोगों से कहा कि आप सब लोगों के होंठों पर केवल एक ही नाम होना चाहिए, होली नेम ऑफ जीसस। इस नाम को प्लाकार्ड बनाकर अपने डोर पर लगाएं या घर में रखें, और ये पावरफुल नाम आपके दिल और ज़ुबान पर हर समय रखें, या आप चिट बनाकर उस पर ये नाम लिखकर अपनी जेब में रखें। तो बिशप डायस ने बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखकर सब बीमार और जो मरने के करीब थे उनके अंदर हिम्मत जगाई और कहा, यीशु नाम को लिखकर अपनी पॉकेट में रखो। कुछ समय बाद यीशु का नाम लेकर लोग क्या है ठीक होने लगे, और पूरे पुर्तगाल में यीशु के नाम से प्रार्थनाएं होने लगीं, और धीरे धीरे पूरा पुर्तगाल जो है वो प्लेग मुक्त हो गया। तो लोगों ने जीसस के नाम की शक्ति को जाना और पुर्तगाल में रहने वालों का संसार जैसे बदल गया। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम अपने आप को औरों से डिफरेंट बना सकते हैं। खासकर इस 2022 नए साल में जिसमें आज हमने प्रवेश किया है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है। प्रभु जो है आप सबको साहस और शक्ति दे कि आप अपने जीवन में उसका नाम लेने से ना शर्माएं, और हमारा जीवन जो है सबके लिए एक गवाही हो, सो दैट वी कैन फील द पावर ऑफ होली नेम। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर, प्रभु जी आज धन्यवाद करते हैं 2021 की सलामती के लिए कि आपने हमारे जीवन में प्रभु जी एक नया साल और दिया, और प्रभु जी हमने आपके नाम की शक्ति के बारे में आज जाना है। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आने वाले इस साल में हम आपके नाम को लेने से ना शर्माएं, हमारे अंदर हिम्मत और ताकत दें, शैतानी ताकतों को प्रभु जी हमसे दूर रखें, और अपनी महिमा के लिए आप हमें हमेशा इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे, एंड वी विल रीड द नाइसीन क्रीड। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, and all that is seen and unseen. We believe
in one Lord Jesus Christ, an only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On third day, he rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge and the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. आइए इस समय हम इंटरसेसी प्रेयर के लिए जाएंगे। सिफारिशी दुआएं 16वां हिस्सा। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलों रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर मोस्ट राइट रेवरेंड पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे पासबान रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार और एसोसिएट प्रीस्ट रेवरेंड मॉरिसन रोज और रेवरेंड शर्ली लाल, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। यह बख्श की तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है।
हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब एक साथ बोलेंगे, ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा क्योंकि प्रभु ने हम सबको तंदुरुस्ती दी है, संभाला है और ये नया साल हमारे जीवन में दिखाया है। हम सब उसका धन्यवाद करेंगे। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, अपने घरों में आप अपनी ऑफरिंग्स भी इकट्ठा कर सकते हैं और जब कभी भी आप यहाँ पर आएंगे चर्च में, उसको ऑफिस में जमा करा सकते हैं। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस नए साल के लिए। 2021 हमारा बीत गया और अब 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रार्थना में एक दूसरे के साथ लगे रहें ताकि हम सब परमेश्वर की दया में इस वर्ष को, जो कि नया वर्ष हमें दिया गया है, व्यतीत कर सकें। सीनेट की कम्युनिकेशन सेक्रेटरी
रेवरेंड सोफिया मार्क्सरे ने हमारे लिए ग्रीटिंग्स भेजी है, जो कि हमारे मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह, डिप्टी मॉडरेटर राइट रेवरेंड विजय के नायक, जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड डेनिस लाल, ट्रेजरर मिस्टर सुब्रतो गोराई की तरफ से। और ये नया साल हम सबको मुबारक कहा गया है और हम सब के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। जिस तरह से हमने गुजरे सालों को गुजारा है सब चैलेंजेस के साथ, हम प्रार्थना में एक दूसरे के साथ लगे रहें ताकि ये साल भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए व्यतीत कर सकें। हमारे चर्च के एक पुराने मेंबर हैं मिस्टर पीटर डी लॉरेंस। परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है और हम उस परिवार को याद रखेंगे ताकि परमेश्वर उस परिवार को शांति दे। एक बार फिर आपको बताना मांगता हूं कि हम सब जब तक हमें दूसरा कोई आदेश नहीं मिलता है या इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, ऑनलाइन वर्शिप करेंगे। और सभी जो है नॉर्म्स हमको जो बताए गए हैं सरकार की तरफ से, उनको हमको फॉलो करना है। तो मेहरबानी से आप सब उसमें कोऑपरेट कीजिए और परमेश्वर की स्तुति जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से हम करते रहेंगे। चर्च का ऑफिस जो है वो खुला रहेगा सिवाय बुधवार के, और आकर आप अपने ऑफिस में जो भी आपके से बातचीत ऑफिस से संबंधित है वो कर सकते हैं। किसी भी तरह की ज़रूरत अगर आपके पास है मेरी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर व्हाट्सएप भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम सब उस समस्या का समाधान कर सकें और आपके लिए जो भी कर सकते हैं उसको हम पूरा कर सकें। परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस नए साल के लिए, और हम विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो इस कलीसिया के अंदर सम्मिलित हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो हमें दी गई है। इस नए साल में जब हमने प्रवेश किया है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं गुजरे साल के लिए और अपने आप को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं ताकि ये साल 2022 जो हमारे जीवन में दिया गया है और भी बेहतर तरीके से हम पूरा कर सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं आप उनको छूकर चंगाई दीजिए और आने वाले परमेश्वर समय में सबको उस नए वायरस से बचाए रखिए ताकि हम सब तंदुरुस्त रह सकें। सारे परिवारों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। हम खास कर मिस्टर पीटर डी लॉरेंस के परिवार को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जब आपने उनको अपने पास बुलाया है, उनके परिवार के सदस्यों को आप शांति दीजिए ताकि परमेश्वर वो आप पर विश्वास कर सकें और अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान आपको दे सकें। और भी परमेश्वर जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना है, सब पर अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है या शादी की सालगिरह मनाई है, आप उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि परमेश्वर वो भी इस नए साल को अच्छे ढंग से पूरा कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर जिस तरह से हम अपने गुनहगारों को माफ़ करते हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं। परमेश्वर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा के रख,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा तेरा है। ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds and the knowledge of love of God manifest in Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen.